मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी हर एक कमी में। मेरी सोच से परे आश्चर्य कामों से तूने बना दी हर एक कमी में। कठिनाइयों में सब उजड़ा लगे पर तेरे हाथ की परछाई कभी ना हटेगी। धन्यवाद यीशुआ तेरा, धन्यवाद यीशुआ। मेरी हर चाहत को पूरा तूने किया यीशुआ। आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझ में यीशुआ। तेरी राहों से मैं खोया भी अगर फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। तेरी राहों से मैं खोया भी अगर फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। कभी ना छोड़ेगा मुझे, छोड़े ना मुझे कृपा। हर गुजारिश को कबूल तूने किया यीशुआ। मेरे सवालों का जवाब तू ही यीशुआ, यीशुआ। हर गुजारिश को कबूल तूने किया यीशुआ। मेरे सवालों का जवाब तू ही यीशुआ, यीशुआ।
कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया, अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया, पूरा हुआ सब लिखा गया। प्रेज लॉर्ड सबको, जय मसीह की। Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड, Lord brother. प्रेज लॉर्ड। सॉरी आज मुझे लेट हुआ थोड़ा, आज एक फ्यूनरल के लिए जाना पड़ा। अनामिका सिस्टर के लिए हम सब ने प्रार्थना किया था, परंतु परमेश्वर का योजना कुछ और था। अनामिका सिस्टर एक्सपायर हो गई कल रात को। सबको मेरा आवाज आ रहा है? Yes. Yeah, so Anamika sister, she expired yesterday night. तो उनका फ्यूनरल था आज अभी, तो जस्ट हम लोग फ्यूनरल के बाद लौट आए। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज का मीटिंग शुरू करते हैं। Let us pray and start the meeting. Bethany, over to you. You can pray and start the meeting, please. Okay, I'm sorry. Bethany, just pray and we'll start the kids ministry. Thank you, Lord Father, for this beautiful time that you have given us, O Lord. We thank you for each and everyone present over here, O Lord Father. It's by your grace that we are here, O Lord Father. Nothing except for you, O Lord. We commit the rest of the time of this meeting into your hands, O Lord Father. You lead us and guide us, O Lord. We commit the children ministry into your hands, O Lord Father. We commit the worship into your hands. We commit the word into your hands, O Lord. You lead us and guide us, O Lord. Let your will be done alone, O Lord Father. We also pray for whoever couldn't come this time, O Lord Father. Help them to come next time, O Lord. And we also pray for everyone also, each and everyone, O Lord Father. If anyone is sick, O Lord Father, you heal them, O Lord. You know their needs, O Lord Father. We do not know, but you know us, O Lord Father. We thank you, O Lord Father, for listening to us, O Lord. We commit the rest of the time into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. आज बच्चों का सेवकाई लेने के लिए हमारे बीच में मोनिशा है। मोनिशा will take the children ministry today. Monisha, are you ready? Yes, brother. Yes, over to you. Praise the Lord, children. I hope that you have your Bibles with you. So I request Tabitha to read from Ephesians chapter 6, verse 1, 2, and 3. Tabitha, can you read? Yeah. Yeah. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Yes. So what do we learn from this verse? The word of God teaches us that we need to obey our parents who are in the Lord, because this is right.
And we need to honor our parents because this is the commandment of the Lord. And it is not only the commandment, but there is a promise attached to it that if we obey our parents, if we honor them, then it is good for us only. So we need to remember this, and we may live long on this earth. So we need to remember this verse throughout our life. So as we grow up, we start disobeying our parents. But I encourage you all to apply this in your life, and that even if we grow up, we need to honor them, we need to respect them, and we need to obey our parents. So yes, the three things which we learn from this verse is we need to obey our parents, and we need to honor them, because there is a promise attached to it, and this is the promise which is given by God, and we know that He is the God who fulfills the promise. Okay, so now we'll start with the memory verses. I request Sneha to start with the memory verse. Deuteronomy 30, verse 16 and 17. See, I set before you today life and prosperity, death and destruction. For I command you today to love the Lord your God with all your love the Lord your God, to walk in obedience to Him, and to keep His commandments, decrees, and law. Then you will live and increase, and the Lord your God will bless you in the land you are entering to possess. Very good, Sneha. Enoch, can you say the memory verse? Yes, can you hear me? Yes, yes. Psalms 20 verse 1 to 5. May the Lord hear you when you are in distress. May the name of the God of the Jacob protect you. May he send you help from his sanctuary and grant you support from Zion. May he remember all your sacrifices and accept your burnt offering. May he give your heart's desire and your plans to succeed. May we shout out of joy and lift up the banners in the name of our God. May the Lord, may the Lord grant all your requests. Good enough. Hepzibah? I will praise the Lord with all my heart. Before in the Lord, I will sing your praise. Psalm 31. 138. 138. Verse 1. Verse 1. Good, Hepzibah. Tabitha? Psalm 9, verse 1 and 2. I will praise you, O Lord, with all my heart. I will sing of your praises, O Most High. I will tell of all your marvelous works. Good. Philemon? Psalm 24, verse 7 to 10. Lift up your heads, O everlasting gates, and be lifted up, you everlasting doors. No. And the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. Lift up your head, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors. And the King of glory shall come in. Who is this King of glory? Strong and mighty. The Lord strong and mighty. He is the King of glory. Psalm 24, verse 7 to 10. Very good, Philemon. Yash? Yes. Psalms 91, verse 1 and 2. He who dwells in the secret place of the Most आपका आवाज नहीं आ रहा. Psalms 91, verse 1 and 2. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shade of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I will trust. Amen. Yash? He has class. Okay. He is not there. Okay, okay. Ishita? Hello? Is Ishita there? Hello? हाँ, sister. Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ.
Psalm 100, verse 1 and 5. Make a joyful shout to the Lord, all the land. Serve the Lord with the gladness. Come before His presence with singing. Know the Lord, He has God. He has made us, and He's not ourselves. We have His people, and the shape of the peaceful. Hello. I think they have lost signal. They have. Yes, brother. So we'll end this ministry with a prayer. So I request everyone to close their eyes. Father God, thank you, Lord Father, for this timing, O Lord Father. And you helped every children, O Lord Father, to say the memory verse, O Lord. I thank you, Lord Father. Lord, I pray, Father, as these children, O Lord, as they read your word, O Lord Father, as they memorize it, O Lord Father, I pray that you help them to understand the verse, O Lord Father. And I pray, Father, for salvation of each and every children, O Lord Father. Lord, I pray, Father, that Ishita and Mahima also are able to connect next time and they are able to say the verse, O Lord Father. And Lord, whatever they do in their life, oh God, like from studies and everything, oh Lord Father, I pray that help them to glorify your name, oh Lord Father, and help them, oh Lord Father, to obey their parents, oh God. Thank you, Lord Father. I submit rest of the time into your hands, oh Lord Father. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Over to you, Bethany. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा तुझ में मेरी सुबह तुझ में मेरी हर शाम तुझ में मेरी सुबह तुझ में मेरी हर शाम शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे कैसा अनोखा प्यार टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार जिसने अकेला न छोड़ा मुझे कैसा अनोखा प्यार माँ की तरह मुझे थामेगा वो गिरने न देगा मुझे मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो बाहों में लेगा मुझे माँ की तरह मुझे थामेगा वो गिरने न देगा मुझे मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो बाहों में लेगा मुझे मेरी निर्भरता में मेरी समर्थ यीशु मसीह का
मुझे थामेगा वो, गिरने ना देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने ना देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, बाहों में लेगा मुझे, बाहों में लेगा मुझे. Thank you, Lord Father, for this time, O Lord. You never leave us, O Lord. We thank you, O Lord Father, for your faithfulness, O Lord, towards us. We thank you that you never leave us, you never forsake us, O Lord. We thank you for your love, O Lord Father, towards us. We thank you that you have called us your Son, O Lord Father. We weren't worthy of it, O Lord Father, but you gave us that title, O Lord Father. And we thank you, O Lord Father. We thank you for giving your only begotten Son on that cross, O Lord Father, to die for our sins, O Lord Father. We thank you for your Lamb, O Lord Father, that took away all our sins, all our iniquities on that cross, O Lord. We thank you that you have washed us, O Lord, white as snow, O Lord. We thank you for your blood that was shed, O Lord. We thank you, Lord Father, for everything that you do in our lives. We thank you for keeping us safe, O Lord, for providing us with good food, with a shelter, O Lord Father, with good clothes, O Lord. We thank you, Lord Father, for everything that you are doing in our life. We thank you for this beautiful time, O Lord, that you have given us as one family, O Lord, to gather in your presence and to learn more about you, O Lord. We commit the time into your hands, O Lord. You lead us and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Thank you, Bethany, for leading us in worship, and Monisha for leading the children in the time of that short exhortation. I hope all the children remember today's verse through which Monisha explained to you. Who can say? Anyone who remembers the verse? Any one of you can say from the children? Which was the verse? 6 verse. Ephesians 6 verse 1 to 3. Ephesians 6 verse 1 to 3. What was the verse? Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
Very good. Honor your Yeah. father and mother. Yes. Very good. So it may go well with you. Very good. So let us remember that verse and meditate on that verse. It is not easy to obey all the time, correct? It is difficult, but all of you should have the willingness to obey, and God will give you the grace. Okay, it is time for a short exhortation. परमेश्वर के वचन से हमें उत्साहित करेंगे जानकी सिस्टर आप है? यस ओके, जानकी सिस्टर हमें वचन से उत्साहित करेंगे. सिस्टर गुजराती में बोलेंगे? नहीं, ओके, मैं हिंदी में बोलेगी. हिंदी में बोलेंगे? ज्यादा टाइम हो जाएगा. हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, संभाल लो. अच्छा, आपने बोला गुजराती में बोलेंगे, इसके लिए मैंने बोला. ओके, कोई बात नहीं, हम आपका हिंदी संभाल लेंगे, कोई बात नहीं. ओके ओके ओके, थैंक यू. ओके, પ્રાર્થના में जाइए. પ્રભુજી તમારો ખૂબ જ આભાર માને છે, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ પ્રભુ. તમે આમ સુંદર એવી તક અમને આપી છે પ્રભુ, એના માટે તમારો આભાર માને છે, તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમારું વચનનું મનન કરશું ત્યારે પ્રભુ તમે અમારા હૃદયને ખોલો પ્રભુ, એને અમે સમજી શકીએ, એ પ્રમાણે કાર્ય કરનારા બાળકો બની શકે. એ માટે પવિત્ર આત્મા દ્વારા તમે અમારા સાથે કાર્ય કરો પ્રભુ, અને અમને દોરોને ચલાવો. અમે તમારા ગવાહી બને એવું તમે થવા દો પિતા. અમારો ઉપયોગ કરો, અમને લાયક બનાવજો પિતા પરમેશ્વર. એક ખાસ પ્રાર્થના વિનંતી प्रभु यीशु ना नाम में मांगू पिता, सामने स्वीकार कर दो बाप. आमीन. मैं पाउल प्रेरित का पत्र पहला कोरिन्थी का 9वां अध्याय से उसमें मुझे ये वचन बहुत प्रोत्साहित करता है, और मुझे वो याद दिलाता है जो 16 कलम 9वां अध्याय का, जो हूँ सुवार्ता प्रगट करूं तो तेमा मारे अभिमान राखवानुं कई रक्षण कारण નથી, કેમ કે એમ કરું મારી ફરજ છે, અને જો હું સુવાર્તા પ્રગટ ન કરું તો મને અફસોસ છે. એ વચન में सिस्टर आप गुजराती में बोलिए, आप जल्दी बोल पाएंगे वो अच्छा होगा. ओके, और हो सके तो आपका वीडियो ऑन रखिए, एंड अंजलि हिंदी में अनुवाद करेगी. ओके. तो मैं वो जो 9मा अध्याय ने कोरिन्थियों पत्र 9मो अध्याय एने 16મી कलम मने बहुज मने ईश्वर में प्रेरित करे छे के हूँ घणी बधी वार जारे कलम वाँचू छू ते वखते हूँ जारे કોઈને સુવાર્તા આપવાનો સમય મને મળે છે, પણ હું આપી શકતી નથી, માટે મને ઘણો બધો અફસોસ થાય છે. ઘણી બધી વાર મેં મારી તક, જે મને મોકો મળે છે, એ મોકો મેં ગુમાવી ચૂકી છું. પછી ઘરે આવ્યા પછી મને એટલો અફસોસ થાય કે અરે મારે આ કેવું જોતું હતું. પ્રભુ મને ક્ષમા કરે. અને જેમ પાઉલે કેવી પોતાની દોડ પૂરી કરી, પાઉલ એકદમ ઉત્સાહિત હતો, એમ પણ હિંમતવાન હતો. એ જ પ્રમાણે આપણે પણ બધા હિંમત રાખીએ અને નિડરતાથી સુવાર્તા આપવામાં આપણે જોશથી મનુષ્યની સામે આપણે ઈશ્વરની વાણી સંભળાવવાની છે, કહેવાનું છે, ઈશ્વર વિશે જાણ કરવાનું છે. ને એ જ પ્રમાણે તેઓ જેવો સાંભળે તેમના હૃદયમાં ઈશ્વર કામ કરે. અને જેમ પાઉલ કહે છે કે હું નિર્બળોની સાથે નિર્બળ બન્યો, અબુદ્ધિઓની સાથે નિર્બુદ્ધિ બન્યો, પણ એવા લોકોને હું ખેંચી લાવું. એને એટલું બધું એ ઉત્સાહિત છે પ્રભુમાં લાવવા માટે, કેમ કે પ્રભુએ આપણને પસંદ કર્યા છે, અને પ્રભુએ આપણને એના લોકો બનાવ્યા છે, અને આપણને પ્રભુએ હુકમ કર્યો છે, આજ્ઞા આપી છે, જાઓ અને शिष्य बनाओ. सिस्टर एक मिनट. हाँ, एक मिनट सिस्टर. अंजलि, Yes. please interrupt her and interpret. I thought altogether I will just
take new thing No, and no, I will please translate. I thought that is right. interrupt, yeah. Continue, please. Okay, so sister is telling that जो ये वचन है और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मतलब सिस्टर बोल रही है कि हमें सुसमाचार सुनाना चाहिए, और कई बार उनको मौका मिला और उन्होंने गवा दिया, उसके लिए उनको बहुत ही दुख होता है। और पौलुस ने जैसा अपना दौड़ पूरा किया, वैसा ही पौलुस उत्साहित होके उसने दौड़ पूरा किया, वैसे ही हमें भी अपना दौड़ पूरा करना चाहिए। यस सिस्टर, आप Yes. बोलिए अभी। हाँ, और मैं दूसरा एक कलम मुझे बहुत समरिया स्त्री के बारे में मुझे बहुत ये लगता है, उसके बारे में भी मुझे कुछ कहना है थोड़ा। जब प्रभु यीशु प्यासा था और कुएं ताके पानी मांगा, तो समरूनी स्त्री ने क्या वाणी व्यवहार से सॉरी वार्तालाप करवाથી સામરિયા સ્ત્રીને પ્રશ્ન પૂછવા માંડી અને ઈશ્વરે એને પ્રભુ ઈસુએ એને ઉત્તર આપ્યો, અને એ જ જેટલું પ્રભુ ઈસુએ એને કહ્યું એટલા પર એને વિશ્વાસ કે આજ મસીહા છે, આવનાર મસીહા છે, આજ છે એમ કરીને પોતે એને પાણી પણ નથી આપવા રહેતી અને યાદ નથી રહેતું, પણ એ દોડીને એ શહેરમાં જાય છે, એની પોતાનું પાણી ભરવાનું ઘડો ત્યાં જ મૂકીને એ શહેરમાં જાય છે દોડીને, અને બીજા લોકોને જેટલું એને સાંભળ્યું, જેટલું પ્રભુ વિશે એને જે વાત કરી, જે કંઈ કીધું, એને એના શહેરમાં જઈને બધાને એને કહી દીધું, કહી સંભળાવ્યું, અને એ સ્ત્રીના વિશે બધાએ વિશ્વાસ કર્યો, અને ઘણા બધા લોકોને સમૃદ્ધિની સ્ત્રી દ્વારમાં વિશ્વાસુ બન્યા। તો આપણે પણ हाँ, सामरी स्त्री जैसे प्रभु यीशु के पास आती है, और प्रभु यीशु ने जो कुछ भी उसको कहा उसने सुना, और वो प्रभु यीशु प्यासा था, उसको पानी देने के लिए भी उसने उसका राह नहीं देखा, लेकिन भागकर सबको बताया प्रभु यीशु कौन है, और जो पानी प्रभु यीशु ने जो दिया था उसको पता चला, और वो सबको जाके उसने बोला। हाँ, तो हम लोग भी वैसे ही निडर होके हिम्मत करके आगे बढ़ना है। अरे सॉरी, हिम्मत રાખીને આગળ વધવાનું છે નિડરતાથી, અને જ્યાં પણ આપણે મોકો મળે, મોકો આપણે ખોવાનો નથી, એ મોકાનો ફાયદો તરફ ઉચકી લેવાનો, ખેંચી લેવાના માણસો, જેમ પાઉલે ખેંચી લીધા બધા લોકોને, એ પ્રમાણે સામરિયા સ્ત્રીના જેવું આપણે પણ એ પ્રમાણે કરવું જોઈએ। हाँ, तो हमें भी जैसे पौलुस ने सबको खींच लिया प्रभु यीशु में, हमें भी हिम्मत से सबको खींच लेना है, सामरी स्त्री की तरह, पौलुस की तरह। प्रभु बधाने आशीषित करे, અને બધા સર્વ લોકો આપણે ગવાહી બને પ્રભુના। આમેન, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे और आपको गवाही बनाए। आमीन, આમેન, પ્રેઝ ગોડ। બહુ સારું વચન હતું। धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हम सब इसी प्रकार जो वचन से हमें परमेश्वर जानकी सिस्टर के द्वारा अगुवाई किया कि हम उनका सुसमाचार को हर समय बांटते जाए। आमीन। आइए हम आज का वचन में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक उसका 34 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक उसका 34 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 34। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आए हैं, विश्वास करते हुए कि हमारे हर एक अधर्म कामों का कीमत
प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूर्णता से चुकाया और हमें आपका पुत्र कहलाने का योग्य बनाया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके वचनों से आपके मन को हम जानना चाहते हैं प्रभु, और भी गहराई से आपके इच्छाओं को हम समझना चाहते हैं और आपकी तरह हम बनना चाहते हैं परमेश्वर। जो योजना आपने आरंभ से इजरायली लोगों को आपने स्पष्ट किया, वही योजना आज भी आपका कलीसिया के प्रति है। इसलिए हम अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका योजना हम सबके जीवन में पूरा होने दे। आपके वचन के द्वारा आप हम सबको शुद्ध कर और आपका पुत्र यीशु के आने के लिए तैयार कर परमेश्वर। और एक बार हम आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु, हम सबसे आप बातें कर प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर मूसा से इजरायली लोगों के बारे में नाराज होकर कहा कि मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, परंतु मूसा से परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ जाऊंगा, मेरा उपस्थिति तेरे साथ रहेगा। तब मूसा ने क्या कहा कि यदि तेरा उपस्थिति हम सबके साथ नहीं है तो हमें यहां से आगे मत ले जा। मूसा का इजरायली लोगों के प्रति एक प्यार, प्रजा के प्रति एक समर्पण और एक सच्चा चरवाह और अगुवाई का एक गुण हम मूसा के जीवन में देखा, और कैसा मूसा इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में मध्यस्थी कर रहा है, ये हमने देखा। और इतना ही नहीं, मूसा का एक इच्छा था कि वो परमेश्वर को देखे, मुहामुंह देखे। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू मुझे मेरा चेहरा देख नहीं पाएगा। वो वचन हम पढ़ेंगे 20 वाक्य, 33 अध्याय का 20 वाक्य, चैप्टर 33 वर्स 20। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। तू मेरा मुंह का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरा मुंह का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। ये नकारात्मक तरीके से लेने वाला एक वाक्य नहीं है, परंतु इस वाक्य में परमेश्वर का पवित्रता, अति पवित्रता दिखाई देता है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर ने कहा ना, क्योंकि मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। ओके, परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए, उनके साथ रिश्ता में गहराई में उतरने के लिए, उनके मन को जानने के लिए, करीब जानने के लिए पवित्रता होना बहुत जरूरी है जीवन में। एक विश्वासी, एक मसीह व्यक्ति का लक्ष्य, उद्देश्य और एम्बिशन ये होना चाहिए कि मैं पवित्रता में बढ़ते जाऊं, दिन प्रतिदिन मैं और पवित्र और सिद्धता की ओर मैं और बढ़ते जाऊं। ये हमारा एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक प्रयास होना है। उसके लिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें दिया है, हमें अनुग्रह देता है परमेश्वर। He gives us grace to live an overcoming life, that means a holy life.
So let us all aim for that. Let that be our aim. Let us not settle down or हम समझौता न करें हमारे आत्मिक दौड़ में, आत्मिक जीवन में हम हमारे गलत स्वभाव या कुछ भी ऐसे कमजोरी के साथ हम समझौता न करें। हम अपने आप को ऐसा न कहे कि मैं मनुष्य हूं इसीलिए मेरे अंदर ये कमी है। ऐसा बोलकर हम उस कमी घटी को, हमारे गलतियों को साधारण तरीके से न ले। हर गलतियों को गंभीरता से लेकर एक प्रकार का कदम उठाए। Let us take steps, all steps that is required to live an overcoming and holy life. यूसुफ ने क्या किया? वो पाप से दूर भागा, flee away from evil things. That is what Bible teaches. तो यहां पर जब परमेश्वर मूसा से कहता है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के मुंह को देखकर जीवित नहीं रह सकता, वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है। और वचन कहता है रोमियो का पुस्तक में कि हर मनुष्य पाप करके परमेश्वर के महिमा से रहित हुआ है। All have sinned and have fallen short of God's glory. परमेश्वर का महिमा का दर्शन होना है तो हम हमारे पाप के कारण उस महिमा का दर्शन होने के लिए पाप के कारण कमी हुआ है। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद कि यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के द्वारा हमारा पाप के ऊपर हमें विजय और पाप का प्रायश्चित हुआ है। हमें परमेश्वर के पास जाने का एक धैर्य, एक हिम्मत मिला है। निर्भय होकर हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के उस बलिदान, पवित्र बलिदान के कारण। लेकिन परमेश्वर के पास जाते वक्त निर्भय तो होना है यीशु के कारण, परंतु हमें अपने आप को जांचना भी है कि क्या हम कुछ पाप या हमारे जीवन में हम गलत स्वभाव में क्या है, तो हमें तैयारी करके जाना है। परमेश्वर के उपस्थिति को हमें साधारण तरीके से नहीं लेना है। ये आरंभ से ही ऐसा था और अब भी ऐसा है। नए करार में भी प्रेरितों का 5वां अध्याय में हम अनन्यास और सफीरा के विषय में हम पढ़ते हैं कि कैसा एक छोटा सा झूठ भी, एक छोटा सा चीज छिपाने की वजह से भी परमेश्वर का अति पवित्र उपस्थिति उस कलीसिया में था, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर आया था। उस कारण एक छोटा सा झूठ भी वहां पे टिक नहीं पाया। वे दोनों पति पत्नी वहां पर गिरकर मर गए। That is the power of God's holiness. परमेश्वर का पवित्रता। क्या हम ये हमारा जीवन का एक लक्ष्य बना सकते हैं कि मुझे पवित्र बनाए? रोज हम अपने आप को साफ करने में परमेश्वर के वचन के द्वारा, उनका पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करें। ओके, हम संतुष्ट न रहे, हम समझौता न करें ये सोचकर कि मैं उस व्यक्ति से बेहतर हूं,
ऐसा सोचकर हम समझौता न करें। हम परमेश्वर को एक लक्ष्य बनाएं, परमेश्वर का पवित्रता को एक लक्ष्य बनाएं। हम परमेश्वर की तरह नहीं है अभी भी, और उनकी तरह बनना है। तो यहां पर परमेश्वर मूसा से साफ कहता है कि मेरा चेहरा देखकर कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए उस चट्टान के पीछे जाने के लिए परमेश्वर मूसा से कहता है। 21 वाक्य पढ़िए, 21। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। उस चट्टान पर खड़ा हो। आगे। और जब तक मेरा तेज सामने से होके चलता रहे, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर निकल न जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। परमेश्वर मूसा से कहता है कि उस चट्टान के सहारे, छाए में तू रहेगा, ओके, जब तक मेरा तेज तेरे सामने से नहीं निकलेगा। तेज मतलब महिमा। तो परमेश्वर का महिमा भरा उपस्थिति, हम जो कहते हैं ना कि उनका महिमा भरा उपस्थिति हमारे बीच में है, हम बहुत साधारण तरीके से उस वाक्य या उस शब्द को हम बोल देते हैं, अक्सर हम बोलते हैं। लेकिन जब भी हम बोले परमेश्वर आपका उपस्थिति हमारे बीच में है, हम अक्सर प्रार्थना करने के समय पर बोलते हैं ना, जहां 2 या 3 व्यक्ति है वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति है। क्या हम ये स्मरण करते हैं, क्या हम ये सोचते भी है जब हम वो बोलते हैं तब, कि परमेश्वर का उपस्थिति है मतलब परमेश्वर का महिमा है, उनका महिमा भरा उपस्थिति है। और यदि उनका महिमा है तो महिमा क्या है ये हमें समझना है। यहां पर परमेश्वर उनका महिमा के बारे में मूसा से कहता है कि मेरा महिमा मतलब मेरा उपस्थिति, ओके, और उस महिमा भरा चेहरा को तू देख नहीं पाएगा, देखकर जी नहीं पाएगा, जीवित नहीं रहेगा कोई भी व्यक्ति। ये परमेश्वर का शब्द है, ये पवित्रता से जुड़ा हुआ है। ये परमेश्वर जो समझा रहा है, उनका पवित्रता के कारण परमेश्वर कह रहा है, और हम मनुष्य का कमी और अपवित्रता के कारण परमेश्वर कह रहा है। तो जब भी हम कहते हैं कि उनका महिमा भरा उपस्थिति हमारे बीच में है, हमें सावधान रहना है। हम कैसे हैं, हमें अपने आप को जांचना है। हाउ आर वी, हाउ डिड वी लिव आवर लाइफ दिस डे, हमने आज का दिन कैसा बिताया। क्या हमारे शब्द, मुंह से निकला हुआ शब्द सही था सब? क्या हमने सही व्यवहार, सही स्वभाव को दर्शाए? हमारा जीवन क्या परमेश्वर को प्रसन्न है? ये हमें अपने आप को जांचना है। उनका उपस्थिति है जब हम बोलते हैं, हर वक्त हमें समझना है इस बात को, ओके। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा उस चट्टान के छाए पे रहना, और जब तक मेरा महिमा, मेरा व्हाट इज दैट वर्ड इन हिंदी, तेज यहां से नहीं निकलेगा, तब तक मेरे हाथों से मैं तुझे ढांकूंगा। और फिर 23 वाक्य 23, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुंह का दर्शन नहीं मिलेगा। मेरा मुंह का दर्शन नहीं मिलेगा, परंतु मेरा पीठ का दर्शन तू पाएगा। उतना दर्शन मिला, वही मूसा के लिए बहुत बड़ी बात है। मूसा को वो सौभाग्यता मिला, ओके।
और वचन कहता है कि मूसा संसार में सबसे नम्र व्यक्ति था। ओके, क्या हम सब परमेश्वर का महिमा को पाने के लिए क्या हम एक चाहत रख सकते हैं? और यदि हमारे अंदर चाहत नहीं है तो हम बनावट करने की जरूरत नहीं है, परंतु परमेश्वर के सामने हम सच्चे दिल से बोले, प्रभु आपके लिए मेरे अंदर भूख और प्यास कम हुआ है, वो पहला प्यार कम हुआ है मेरे अंदर, वो भूख और प्यास मैं जागृत करना चाहता हूं, मुझे मदद कर और कुछ कदम उठाओ। परमेश्वर के पास जाओ, प्रार्थना में समय बिताओ, प्रभु के साथ बातें करने में समय निकालो, वचन पढ़ने में, मनन करने में, उनको और जानने में समय निकालो। ऐसा हम परमेश्वर के करीब जाएंगे, उनका महिमा को हम अनुभव करेंगे। परमेश्वर इन बातों को मूसा से कहने के बाद, ओके, मूसा का वो प्रार्थना मत भूलो। 15वां वाक्य में मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि तेरा उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाएगा तो हमें इस जगह से मत ले चल आगे। ओके, इस बात को परमेश्वर सुना। ओके, और इजरायली लोगों के विरुद्ध या उनके ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा था, उससे परमेश्वर पीछे हटा मूसा के कारण। और फिर परमेश्वर ने क्या किया? 34 अध्याय में परमेश्वर और एक बार आज्ञाओं को, व्यवस्था को लिखा। ओके, जो व्यवस्था परमेश्वर ने, जो आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने पहले लिखा था अपने ही हाथों से। ओके, उन पत्थर के व्हाट डू यू कॉल, तख्तियों पर, पत्थर के तख्तियों पर। और जो मूसा क्रोधित होकर वो पत्थर के 2 तख्तियों को फेंक कर वो टूट गया था, परमेश्वर और एक बार लिखने जा रहा है। ओके, ये दर्शाता है कि परमेश्वर क्षमा किया इजरायलियों को, दया दिखाया इजरायलियों पर मूसा के कारण। आप और मैं यदि मूसा की तरह लोगों के पाप के लिए मध्यस्थी करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर से हट सकता है। परमेश्वर उन लोगों का उद्धार कर सकता है। और उद्धार पाए हुए लोग भी जब परमेश्वर से दूर जाते हैं, उनके लिए भी हमें मध्यस्थी करना है, प्रार्थना करना है, प्रभु क्षमा कर, उनका मन को बदल। ऐसा एक हमारे अंदर एक बोझ का जरूरत है। सुसमाचार के पुस्तकों में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो what do you call for compassion, when he saw the people he was moved with compassion, Bible says। वो उनका हृदय पिघल गया जब वो लोगों को देखा, भीड़ को देखा तब। ओके, उनका हृदय छू गया। ऐसा संवेदनशील हृदय था यीशु का। और वचन कहता है कि जो मन यीशु मसीह में था वही मन हमारे अंदर भी होने दे। Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. That is what Bible says. तो हमारे अंदर भी नाश होने वालों के बारे में, जो उद्धार नहीं पाए हैं और जो उद्धार पाकर भी परमेश्वर से दूर है, उन लोगों के लिए हमारा एक ऐसा हृदय जो यीशु का हृदय है। वचन कहता है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो, हर एक का उद्धार हो। ऐसा परमेश्वर चाहता है। क्या हमारा हृदय भी उस बोझ से है, या हमारे अंदर केवल हमारे घर बनाने के लिए बोझ है, हमारे बच्चों के प्रति, या हमारे परिवार पैसा कमाने के लिए
हमारा घर का राशन भरने के लिए, खाना खाने के लिए, क्या उसी के लिए हमारा व्यक्तिगत और पारिवारिक स्वार्थी जीवन के लिए केवल बोझ है या दूसरों के लिए भी है? जानकी सिस्टर के द्वारा भी हमने वही सुना। परमेश्वर हमसे आज याद दिला रहा है वचन के द्वारा कि हम लोगों के पास हमारा दिल उन चीजों के लिए रहना बहुत जरूरी है। ओके, यहाँ पर मूसा का हृदय और मूसा के कारण परमेश्वर का हृदय जो पिघल गया और दया दिखाया परमेश्वर लोगों के लिए, वो हमें दिखाई देता है। और परमेश्वर और एक बार उन 2 पत्थर के तख्तियों पर व्यवस्था या आज्ञाएं लिखता है। और ये आज्ञाएं हम जैसा केवल 10 आज्ञा है या वचन है, केवल ऐसा नहीं देखना है हमें, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के इन 10 आज्ञाएं, व्यवस्था जो है वो परमेश्वर का वाचा को दर्शाता है। It's called the book of the covenant, the testimony of the covenant. Okay, the testimony of the Lord, जो उस आर्क के ऊपर रखा गया था अति पवित्र स्थान में। पढ़िए 34 अध्याय का पहला वाक्य से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। पहली तख्तियों के समान पत्थर के और 2 तख्तियां गढ़ ले, बना दे। आगे, तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। तो परमेश्वर और एक बार लिखने के लिए तैयार हुआ। ओके, ये क्या है, इसका अर्थ हमें समझना है। परमेश्वर क्या लिख रहा है? वचन लिखने जा रहा है। उनका इच्छा लोगों से, हम जो परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं, संतान कहलाते हैं, उनके संतान से वो क्या अपेक्षा रखता है वो लिखने जा रहा है। हत्या मत करो, हाथ से बनाया हुआ मूर्ति की पूजा मत करो। इन सब आज्ञाएं जो है परमेश्वर के संतान कहलाने वाले लोगों से परमेश्वर अपेक्षा रखता है, वो आज्ञा के रूप में परमेश्वर दे रहा है। और जब परमेश्वर इन आज्ञाओं को देता है, मतलब परमेश्वर बातें करना चाहता है अपने प्रजा से। ओके, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, ओके, हर दिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें ये याद रखना है, जब भी हम बाइबल खोल के बैठते हैं, परमेश्वर मुझसे बात करने जा रहा है। ओके, ये हमें समझना है। केवल साधारण तरीके से जैसा हम न्यूज़पेपर खोल के पढ़ते हैं, वैसा हमें बाइबल खोलकर नहीं पढ़ना है। प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर मुझसे अब बात करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ से लिखा हुआ शब्द है। और यहां पर जब परमेश्वर कहता है कि मैं और एक बार लिखूंगा, तब परमेश्वर मूसा के द्वारा लोगों को कहता है कि तैयारी करके आओ मेरे पास। पढ़िए दूसरा वाक्य। सवेरे तैयार रहना, हाँ, और भोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई न चढ़ाए, वरन पर्वत भर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे, न भेड़ बकरी और न गाय बैल भी पर्वत के आगे चलने पाए। तो हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय पर, ओके, जब भी आप वचन खोलकर पढ़ेंगे, एक तैयारी के साथ आओ। जब आप कलीसिया में पास्टर का वचन सुनते हैं, कोई भी जब वचन प्रचार करते हैं, तैयारी के साथ आओ, तैयारी के साथ बैठो। YouTube में रविवार को जब आप वचन सुनते हैं, तैयारी के साथ सुनो।
हमें अपने आप को जांचना है कि इस कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण 1.5 साल से हम ऑनलाइन में जब वचन सुनते हैं, क्या हम वचन को साधारण तरीके से ले लिया है? क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। जब कलीसिया में जाते वक्त भी, जब कलीसिया चालू था, तब भी लोग बिना हिचकिचाए अपने समय पर 10 बजे कलीसिया शुरू होता है आराधना, परंतु लोग 10:15, 10:30 कोई भी समय पर बिना हिचकिचाए अंदर चले आते हैं, जाते हैं। पास्टर ने कई बार कहा है कि समय के पहले आना है, परमेश्वर का उपस्थिति है, तो परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लेना, उनके उपस्थिति को गंभीरता से नहीं लेना, उनके वचन को गंभीरता से। जब वचन पास्टर कलीसिया में जब बांटते थे, ओके, कई लोग आंख बंद करके गहरा मनन में चले जाते हैं, ओके, गहरा एक नींद में चले जाते हैं लोग, ओके। ये बहुत ही गंभीर बात है, परमेश्वर के उपस्थिति को साधारण तरीके से लेना, क्योंकि वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर यहाँ पर मूसा से कहता है कि मैं पत्थर के तख्तियों पर लिखने जा रहा हूं, तैयारी से आओ, सुबह को तैयारी से आओ, ये परमेश्वर कह रहा है। सो गॉड वॉन्ट्स अस टू टेक हिज वर्ड very seriously with all preparedness. Be prepared. And what is that preparedness? वो तैयारी क्या है? परमेश्वर बात करने जा रहा है, तो उन बातों को मैं मेरे जीवन में लागू करना चाहिए। उस तैयारी से, उस उद्देश्य से सुनना है। केवल एक कान से सुना और दूसरे कान से मैं निकाल दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बीज बोने वाला उस व्यक्ति का दृष्टांत में यीशु मसीह साफ कहता है कि कैसा हमारा हृदय का जमीन कैसा होना चाहिए। वो अच्छा जमीन होना चाहिए, क्योंकि बीज जो है वचन को दर्शाता है, और जब ये वचन बोया जाता है तब अपने अपने जमीनों को अच्छा करो। एक किसान को पूछो जमीन अच्छा करने में कितना मेहनत लगता है, कितना प्रयत्न करना पड़ता है, आसान नहीं है। हमारे हृदय में हर प्रकार का पाप या गलत चीज, हर एक चीज हृदय से उत्पन्न होता है, यीशु कहता है। तो हमें सावधान होकर, हमारे अंदर यदि कड़वाहट या किसी को हमने क्षमा नहीं किया है, नफरत या कोई भी प्रकार का पाप है मन में, हृदय में, तो हमें उस तैयारी से आना है। परमेश्वर, मेरे अंदर गलत चीज है, मैं आपके वचन को सुनते वक्त मेरे हर एक उन गलत चीजों को आपके वचन से आप शुद्ध कर, मैं चाहता हूं। ऐसे एक प्रार्थना पूर्वक तैयारी से अच्छा जमीन बनाओ, और देखो परमेश्वर का वचन कोई भी बात करे, कोई भी वचन बांटे, वो कोई भी हो, आपके हृदय को छुएगा, क्योंकि बोलने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन वचन है जो कार्य करता है। एक गधा भी यदि अपना मुंह खोलेगा तो कार्य करेगा। बालाम के जीवन में क्या हुआ हम सब जानते हैं। गिनती का पुस्तक मेरे ख्याल से 23 अध्याय में आप पढ़ो, एक गधा अपना मुंह खोला, परमेश्वर ने उस गधे को इस्तेमाल किया बालाम के मन में बुद्धि लाने के लिए, उसका मन परिवर्तन करने के लिए, उसको एहसास दिलाने के लिए। ओके, योना के जीवन में परमेश्वर ने एक कीड़ा को इस्तेमाल किया, एक पौधा को, एक पेड़ को इस्तेमाल किया, एक मच्छी को इस्तेमाल किया। तो परमेश्वर अलग अलग तरीके से बात करता है। यहां पर परमेश्वर बात करने के पहले, वचन देने के पहले मूसा से कहता है तैयारी से आओ।
ओके, हम ये याद रखें हमेशा। और 34, 35, 36, 37, 38 और 39 अध्याय, फ्रॉम चैप्टर 34 टू 39, ये सब अध्यायों में परमेश्वर और एक बार दोहरा रहा है कि उनका अति पवित्र स्थान या मिलाप वाला जो तंबू है किस प्रकार से बनाना है। ओके, उनका मंदिर का जो माप वगैरह, हर एक वस्तुएं किस प्रकार से बनाना है वो वर्णन कर रहा है परमेश्वर, जो हमने पहले सीख चुका है। शुरुआत के अध्यायों में कुछ अध्याय पहले हमने इन बातों को सीखा है, तो मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। तो 34 अध्याय से 39 अध्याय तक हमने हर एक बातों को पहले भी देखा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। लेकिन कुछ वाक्यों को हम निकाल कर पढ़ेंगे कि परमेश्वर जब मूसा को इन आज्ञाएं देते हैं, ओके, कि किस प्रकार से उस तंबू को बनाना है, उनका अति पवित्र स्थान को कैसे पवित्र स्थान से अलग रखना है, उन पर्दों को कैसे बनाना है, इन सब बातों को जब परमेश्वर बता रहा है, तब वहां पर सारे आज्ञाओं के बाद 39 अध्याय में आएंगे, चैप्टर 39 वर्स 1, 39 अध्याय उसका पहला वाक्य। फिर उन्होंने नीले, बैजनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्र स्थान की सेवा के लिए और हारून के लिए भी पवित्र वस्त्र बनाए, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। हम अभी कुछ समय देखेंगे कि कैसा परमेश्वर हर एक आज्ञाएं 34 अध्याय से 39 अध्याय तक जो भी आज्ञाएं बारीकी से जो परमेश्वर ने दिया, क्या मूसा ने उन आज्ञाओं को पालन किया, उस आज्ञाओं के अनुसार मूसा ने बनाया, ये हम देखेंगे। तो 39 अध्याय का पहला वाक्य क्या कहता है अंत में, कि परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा मूसा ने किया। Of the blue, purple and scarlet thread, they made garments of ministry for ministering in the holy place, and made the holy garments for Aaron as the Lord had commanded Moses. जैसा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया उसी प्रकार उन लोगों ने बनाया। ओके, आगे 5वां वाक्य पढ़िए। और उसे कसने के लिए जो काढ़ा हुआ पटुका उस पर बना, वह उसके साथ बिना जोड़ का और उसी की बनावट के अनुसार, अर्थात सोने और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बना, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उसी प्रकार बनाया। ओके, और जब वचन जोसेफ ब्रदर जब वचन पढ़ रहे हैं, आप लोग सब ये सुन पा रहे हैं कि कितना बारीकी से एक एक चीजों का वर्णन वहां पर परमेश्वर ने किया है। ओके, और परमेश्वर के उन आज्ञाओं के अनुसार जब ये लोग बना रहे हैं, तब भी परमेश्वर के हर एक बारीकी से दिया हुआ आज्ञाएं जो वर्णन है उसी प्रकार से यहां पर वर्णन किया है, उस प्रकार से बनाया। ओके, 7वां वाक्य पढ़िए। और उसने उनको एपोद के कंधे के बंधनों पर लगाया, जिससे इस्राएलियों के लिए स्मरण कराने वाले मणि ठहरे,
जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी उस प्रकार बनाया। ओके, ये शब्द बार बार इन वचनों में दोहरा रहा है। ओके, तो मैं चाहता हूं उस शब्द पर आप गौर कीजिए, मनन कीजिए, और फिर और भी आप पढ़ेंगे तो वहां पर वर्णन किया गया है। हम सीधा जाएंगे 21 वाक्य में, 21। तब उन्होंने चपरास को उसकी कड़ियों के द्वारा एपोद की कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांधा कि वह एपोद के काढ़े हुए पटुके के ऊपर रहे और चपरास एपोद से अलग न होने पाए, जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। ओके, ये सब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार। देखिए, मैं इसके लिए ये आपको और भी हम पढ़ते जाएंगे। मैं इसके लिए पढ़ने कह रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए ये शब्द बहुत मायने रखता है। जैसा यहोवा ने आज्ञा दिया वैसा ही किया। हम सबके जीवन में क्या ऐसा है, ये हमें जांचना है। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही है हम जो भी कर रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हम तो मनुष्य है इसीलिए ऐसा होता है। नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम मनुष्य का ये बहाना बोले। भले हम मनुष्य है, हम मनुष्यों को ही परमेश्वर जानते हुए कि हमारा कमजोरी क्या है, ये सब जानते हुए ही परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है हमें। परमेश्वर अनजान नहीं है हमारे कमजोरियों का, लेकिन हमारे कमजोरियों में परमेश्वर हमारा बल बनता है। उनका पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें दिया है ताकि हम उनके आज्ञाओं के अनुसार जिए। तो जब भी हम कहते हैं कि हम तो मनुष्य है इसीलिए हमारे अंदर ये कमी घटी है, हम गलत तो होगा ही, ऐसा जब हम सोचते हैं और बोलते हैं, हम उनके पवित्र आत्मा का सामर्थ को तुच्छ करते हैं। परमेश्वर स्वयं हमारा बल बनना चाहते हैं, उनके बल को हम तुच्छ करते हैं। ओके, God is able to make us victorious in our weaknesses. So let us be willing to do exactly as God has commanded in all our affairs, in all that we do. जो भी हम हमारे जीवन में करते हैं, परमेश्वर क्या चाहता है। ओके, परमेश्वर क्या चाहता है ये हम सोच कर करें। 26 वाक्य। अर्थात बागे के नीचे वाले घेरे के चारों ओर एक सोने की घंटी और एक अनार, फिर एक सोने की घंटी और एक अनार लगाया गया कि उन्हें पहने हुए सेवा टहल करे, जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। 29 और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की और नीले, बैजनी और लाल रंग की कढ़ाई का काम की हुई पगड़ी, इन सबों को जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी वैसा ही बनाया। 31 और उन्होंने उसमें नीला फीता लगाया जिससे वह ऊपर पगड़ी पर रहे, जिस तरह यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तो ये सब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार किया, हर एक चीजें। ओके, और फिर सब करने के बाद काम समाप्त हो गया। 32 वाक्य पढ़िए। इस प्रकार मिलाप वाले तंबू के निवास का सब काम समाप्त हुआ, और जिस जिस काम की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएलियों ने उसी के अनुसार किया। ओके, काम समाप्त हो गया। जो भी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, हर एक बारीक अब आज्ञाएं भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ही किया। देखो, मनुष्य का एक विचारधारा है, इट्स मैन्स it's man's psychology, the human tendency that the small things, okay, we can ignore. कुछ इधर उधर की बातें थोड़ा चलेगा, ओके, यदि हम नहीं किया तो। ओके, जैसा मैंने तो कुछ
10,000 या लाख रुपए का तो घूस नहीं दिया, मैंने सिर्फ 10 रुपए का दिया है, ओके। या मैंने एक छोटा सा झूठ बोला, या ऐसा हम साधारण तरीके से यदि लेते हैं तो छोटी छोटी बातें बड़ी होकर हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम परमेश्वर से दूर जा रहे। जो बैकस्लाइडिंग जो शब्द है ना, परमेश्वर से दूर जाना, वो एक दिन में नहीं होता। छोटे छोटे बातों में जब हम साधारण तरीके से ले लेते हैं ना, तब वो हमें पता ही नहीं चलता है, हमारा जीवन का एक भाग बन जाता है, एक जीवन शैली बन जाता है, एक आदत बन जाता है, और छोटा बड़ा चीज हो जाता है, ओके। और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम प्रभु से दूर है। हमें लगता है कि हम प्रभु के करीब है, ओके। तो हमें हर चीजों पर ध्यान देकर जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हमें करना है। वो वैसा ही कर रहा है कि नहीं, हमें पता रहने के लिए हमें वचन जानना जरूरी है। वचन नहीं जानने के कारण, वचन नहीं पढ़ने के कारण, अभ्यास नहीं करने के कारण हम कई उन चीजों को कर बैठते हैं ये सोचकर कि ये तो वचन के अनुसार ही होगा, क्योंकि हम वचन नहीं जानते, ऐसा भी है। तो परमेश्वर का वचन को जानना और जानकर वचन के अनुसार ही करना, ये परमेश्वर को प्रसन्न है। और ऐसा प्रसन्न होकर परमेश्वर उनका महिमा भरा उपस्थिति हमारे जीवन में लाता है। 40 अध्याय का 34 वाक्य पढ़िए, चैप्टर 40 वर्स 34। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। हाँ, तब, ये वाक्य तब इस शब्द से शुरू होता है। तब परमेश्वर का तेज, पढ़िए और एक बार। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। हाँ, और बादल जो है मिलाप वाला तंबू में छा गया, मतलब मिलाप वाला तंबू में बादल उतर आया, ओके। यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, ओके। हम सब मसीह लोगों का बादल के साथ एक बहुत गहरा संबंध है, हमें उसके अर्थ को समझना है, ओके। पुराने करार में इजरायली लोगों के जीवन में बादल परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शा रहा था, क्योंकि परमेश्वर उस बादल के पीछे, ओके, क्योंकि लोग उनके पवित्रता को देख नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर उस मिलाप वाला तंबू में उतर आया, बादल उतर आया, मतलब परमेश्वर उतर आया, और उनका तेज क्या हुआ? और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। हाँ, तब लिखा है वो शब्द, तब हुआ। तो जहां कहीं भी तब लिखा है, आपको क्या पूछना है? कब? तब हुआ, कब हुआ? जब सब कुछ परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार किया तब। 33 वाक्य, उसके एक वाक्य पहले पढ़िए, 33 वाक्य। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू में छा गया। हाँ, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। मूसा सब कार्य पूरा किया, जो भी परमेश्वर ने आज्ञा दिया सब पूरा किया, आज्ञा पालन। वही आज मुनीषा ने भी याद दिलाया, बच्चों के लिए केवल नहीं है, वो हमारे लिए भी है, ओके। चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स, ओके। लेकिन परमेश्वर को भी आज्ञा पालन करना, ये हमारे लिए एक वचन है। परमेश्वर जैसा आज्ञा करता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानो, यीशु ने कहा। और यदि हम उनके आज्ञाओं को मानकर जिएंगे, आज्ञाओं के अनुसार जिएंगे, तो निश्चय रहो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और उनका महिमा भरा उपस्थिति आपके जीवन में आप महसूस करेंगे। लेट अस एम फॉर दैट, ओके। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम जिए, ऐसा हम एक प्रयास करें, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम सबके लिए है कि हम विजयवंत जीवन जी पाए, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जी पाए।
ओके, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के मदद से हम इस निर्गमन का पुस्तक साथ मिलकर अभ्यास कर पाए, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। लेकिन परमेश्वर इस प्रकार का केवल अभ्यास से खुश नहीं है, परंतु जो भी हमने सीखा हम जीवन में लागू भी करें, ये हमारा प्रयास रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आए हैं और आपने हमें यीशु के द्वारा ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद। आपका संतान बनाए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, आपके हर एक आज्ञाओं को हम पढ़े, मनन करें, जाने, ताकि हम उन आज्ञाओं के अनुसार जिए। पिता परमेश्वर, हम आपके करीब आए, ऐसा हम चाहते प्रभु। जैसा याकूब का पुस्तक में याकूब कहता है, परमेश्वर के करीब आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे करीब आएगा। अपने पापों को धो दो और परमेश्वर के करीब आओ। पिता परमेश्वर, हमारे हर एक अपराध, हमारा जीवन एक खुला पुस्तक की तरह आपके सामने है। आप सब कुछ जानते हैं, जैसा पतरस ने कहा, यू नो एवरीथिंग लॉर्ड। वी प्रे दैट यू विल हैव मर्सी अपॉन अस। हम पर दया कर परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हम सबको क्षमा किया, इसके लिए। पिता परमेश्वर, आने वाले समय, आने वाले दिन हम सबको मदद कर प्रभु कि हम विजयवन जीवन जिए। आपका पुत्र यीशु के आने का समय बहुत निकट है। हम सबको आप तैयार कर प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम बेतनी के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने बेतनी को हर एक जीवन के हर एक उतार चढ़ाव से आपने ले चला प्रभु, उसे अनुग्रह दिया। आपका अनुभव करने के लिए आपने मदद किया प्रभु। यस लॉर्ड, you helped her to have an experience with you. We praise you, Father. We praise you, God, for her life. That is a blessing to each one of us. हम सब के लिए उसका जीवन एक आशीष है। कलीसिया के लिए वो एक आशीष का कारण है। इसलिए धन्यवाद प्रभु, आपका कार्य उसके जीवन में है। Yes, Lord. You are molding her and making her, yes, Lord, presentable to you. पिता परमेश्वर, जैसा वो इस नए साल में प्रवेश करती है प्रभु, आपका सामर्थ्य में और भी बढ़े प्रभु। उसके द्वारा आपने जो सेवकाई बेतनी को सौंपा है, उस सेवकाई वो पूरा करे प्रभु उसके जीवन में। यस लॉर्ड, बहुतों का आशीष के लिए एक कारण बने परमेश्वर। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, आपका महिमा उसके जीवन के द्वारा हो। हम सब एक मन हो के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बेतनी को आशीषित करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना इसके लिए। अनामिका सिस्टर के जीवन में आपका उद्देश्य कुछ और था। धन्यवाद प्रभु, हमने प्रार्थना किया उसके चंगाई के लिए, परंतु पिता परमेश्वर, हम जानते कि उसका समय आया कि आपने उसको आपके पास बुलाया। जब हमारे आजू बाजू अनेक लोग इस संसार से चले जाते हैं, हम अपने आप को याद दिलाते प्रभु कि हमें भी एक दिन जाना है। उस तैयारी से हम जिए, ऐसा हम सबको मदद कर प्रभु। आपका भय मानते हुए हम जिए। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं अनामिका सिस्टर के परिवार के लिए, उनके पति और उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आपका सांत्वना उनके जीवन में हो और है। इसके लिए धन्यवाद। एक बड़ी आशा आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष करे. Praise God, everyone. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. 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 Thank Praise the you. Lord. Hepzibah. Thank you, brother. Praise God, Baba brother. Praise God. Praise Bye-bye. Lord, brother. Praise Lord. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, sister. Praise the Lord. Everybody, huh? Lakshmi, sister. Praise the Lord. Oh, Praise the Lord. Praise the Lord.